tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3ax पुट कर लें x इक्वल टू a tan थीटा। आई विल लेट यू नो क्यों tan थीटा पुट किया, tan 3 थीटा के बनेगी, यह आएगा tan इनवर्स 3 a स्क्वायर यहाँ पे है, x इज a tan थीटा, तो ये बनेगा a क्यूब tan थीटा माइनस ये बनेगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, थीटा बनेगा tan इनवर्स x अपॉन दिस वी नीड इन द लास्ट, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, इन दोनों में एक क्यूब कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, इन दोनों में भी एक क्यूब कॉमन है, बट वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, it is identity of tan 3 theta, so I will left with tan 3 theta which is equal to 3 theta, and what is theta? Tan inverse x upon 11 tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1 by 2. Now we need to get the value of this. Now what's the principal value of sin inverse 1 by 2? ये हमने किया था, मैं इसको एक बार यहाँ बता देता हूँ। अगर मैं sin इनवर्स 1/2 को थीटा पुट करता हूँ तो sin थीटा 1 by 2। अब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा मस्ट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। 1 by 2 कहाँ पे आएगी वैल्यू? sin 30 1 by 2 होता है, तो थीटा शुड बी 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6। तो यहाँ sin इनवर्स 1 by 2 की जगह हमारे पास पाई बाय 6 आ जाएगा। आई थिंक दैट पार्ट इज क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos, ये कट जाएगा, इट इज 2 cos पाई बाय 3। नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 3? It will become cos pi by 3. Cos pi by 3 का मतलब है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री जो होगा 1 by 2 होगा, तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब ये बचा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 1 किस पे आएगा? पाई बाय 4। The principal here also we need to get the principal. This is the question. We need to get the value of this expression. देखिए आपने पढ़ा था tan inverse alpha plus cot inverse alpha equal to pi by 2, where alpha can take any real value. So it will be cot pi by 2 because tan inverse alpha plus cot inverse alpha equal to pi by 2. Alpha being the any real number for all alpha belonging to real number. So the value of cot pi by 2, the value of cot pi by 2 is 0. That's the final answer. Let me move on to the next one. Now this is 13th question. We need to get the value of this. देखिए अब जो डायरेक्ट हमने प्रॉपर्टीज की थी इनवर्स फंक्शन की, वो यहाँ यूज करेंगे। sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये था 2 tan इनवर्स x। cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ये बनेगा 2 tan इनवर्स y।
राइट, इक्वल टू tan 1/2, यहाँ पे 2 कॉमन है, इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आएगा। नाउ अब ये क्या tan 1/2 की पूरा इसका आगे 1/2 एंगल है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, we are left with this। is equal to tan, now what is tan inverse x plus tan inverse y? और कंडीशन दी है हमें कि xy less than 1, तो it is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। So what we are left with, tan of tan inverse theta is theta, so it is, sorry, tan of tan inverse x I must say is x, so it is x plus y upon 1 minus xy, so that is the tan. Let me move on to the next one. If sine of sine inverse 1/5 plus cos inverse x equal to 1, find x। Now we know that sine inverse, suppose it is sine inverse x plus cos inverse x, ठीक है, it is pi/2, x belonging to -1 to 1। It is given that it is 1. Can I write 1 as sine of sine inverse 1/5 plus cos inverse x equal to, it is 1, can I write as I need pi/2? Okay. Let me write this as, this implies this is equal to sine inverse 1. Now sine inverse 1/5 plus cos inverse x, what's the principal value of sine inverse 1? किस पे 1 होता है, किस एंगल के ऊपर, that is pi/2। Now I have got the result sine inverse, let's say it is unknown y plus cos inverse y, ठीक है, that is pi/2। ये pi/2 तभी होगा जब ये x और ये x सेम होगा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू pi/2, ठीक है ना, एंड x बिलोंगिंग टू -1 to 1, तो ये 1/5 उसके बीच में ही आता है, तो I can write because sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू pi/2, रिजल्ट pi/2 आ गया, इसका मतलब इस x की जगह कितना आना चाहिए, 1/5, therefore x equal to 1/5. That's the final answer. Let me move on to the next one. 15th question. We are given this plus this equal to 5/4 and we are interested to get the value of x. अब ध्यान से देखना, मैं आइडेंटिटी इसमें जो प्रॉपर्टी है वो यूज करूंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये बनेगा this implies tan इनवर्स, क्या होगा, x प्लस y का, x की जगह ये, y की जगह ये पूरा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू कितना, pi/4। tan इनवर्स को शिफ्ट करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, पहले मैं इसका एलसीएम ही ले लेता हूँ साथ में साइमल्टेनियसली, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय
इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा x माइनस वन। ये मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखूं तो इट विल बी x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ आएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। सो लेट मी दिस साइड। नाउ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज ये बना एक्स स्क्वेयर, 2x minus x is x and 2 minus 1 is minus 2 plus x square minus x minus 2 into minus 2 upon x minus 2 into x plus 2 is x square minus 4 minus, and this is equal to, I haven't written here, so tan inverse will be shifted to that side to make it tan pi by 4. Tan pi by 4 minus x minus 1 into x plus 1 is x square minus 1. Clear? And tan pi by 4 is 1. What does this imply? X square plus x square is 2x square plus x minus x cancel minus 4 upon x square minus 4 minus x square plus 1 equal to 1. This implies 2x square minus 4. Here this will be cancelled. Minus 4 plus 1 will be minus 3 and it will be minus 3. This implies 2x square equal to 1. So x square equal to 1 by 2 and therefore x is equal to 1 upon root 2. It is plus minus 1 upon root 2. That's the final answer. Maybe there is this sine inverse sine 2 pi by. Now I can write sine inverse sine x equal to x, but the condition is that I will write because sine inverse of sine x is equal to x, but the condition is x must belong to minus pi by 2 to pi by 2. अब यहाँ पे 2 पाई बाई 3 जो है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में नहीं आ रही, then I will change it. I will write sine inverse sine of. Now can I write 2 pi by 3 as pi minus pi by 3? This expression will not change. Sine pi minus pi by 3 is basically sine 2 pi by 3. 2 pi by 3 को ही मैंने लिखा pi minus pi by 3 और sin pi minus pi by 3 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? वो बनेगी sin pi by 3. तो ये बन गया sin इनवर्स sin pi by 3. अब देखें pi by 3 लाइक कर रहा है इसके और इसके बीच में, तो therefore I can write it as pi by 3. tan इनवर्स tan 3 pi by 4. अब हमारे पास रिजल्ट है tan इनवर्स tan थीटा is equal to theta, but the condition is theta must belong to minus pi by 2 to pi by 2. तो ये एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखता हूँ? tan इनवर्स tan 3 pi by 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 4. अब tan पाई, पहले इसको चेक कर लेते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 बनता है, इसमें कुछ नहीं है. लेकिन tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो ये बनेगा माइनस tan पाई बाय 4. या इसको हम लिख लेते हैं tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, दैट इज बेटर. ये बनता माइनस tan पाई बाय 4 बनेगा.
I can write that as tan of minus pi by 4. Tan of minus pi by 4 is minus tan pi by 4. तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा. अब ये minus pi by 4 लाई करता है इसको इसके बीच में. तो now I can use this result, this one, and write it as minus pi by 4. So this is the answer. So let's see the next one. Sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2 I want to get the value of this expression. अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैं पुट कर लूंगा sin inverse 3 by 5 let's say equal to x कर लेते हैं and cot inverse 3 by 2 equal to 1. Therefore यहाँ आ जाएगा sin x equal to 3 by 5 and यहाँ आ जाएगा cot y equal to 3 by 5. और ये एक्सप्रेशन ये क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ sin इनवर्स 3 by 5 को मैंने x डाला, इसको मैंने y डाला, तो ये बनेगा tan of x plus y. ठीक है, तो इसको इस ढंग से लिख लेते हैं. Therefore टेंजेंट ऑफ sin इनवर्स 3 by 5 प्लस cot इनवर्स 3 by 2 ये कितना बन गया, टेंजेंट ऑफ x प्लस y. tan a प्लस b का आइडेंटिटी है हमारे पास, इट इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y. Now what I need to do is, if I have got sin x 3 by 5, यहाँ देख लेना, ये मैं एंगल x ले रहा हूँ, sin x 3 by 5 है, इसका मतलब ये 3 के 5 है, तो can I calculate this one? It will be 4. ठीक है, तो अगर मेरे पास sin x है तो I can calculate tan x, right? तो यहाँ पे tan x कितना आ जाएगा, 3 by 4. Now cot y is 3 by 2, तो मैं ये एंगल y ले रहा हूँ, let's say this angle is y. cot y is 3 by 2. अब ये क्या बनेगा, this is 4 plus 9 under root 13, तो मुझे निकालना है tan y बन जाएगा 2 by 3. दादा यहाँ पे तो सीधा था, cot था, tan चाहिए था, तो tan रेसिप्रोकल होगा cot का. अब ये क्या बन जाएगा, tan x की जगह 3 by 4 प्लस tan y की जगह 2 by 3 अपॉन 1 माइनस 3 by 4 into 2 by. So this is equal to 12, 3, 9, 9 and 8, 17 upon 12 minus 6, it is 6 upon 12. So I think this 12 and 12 is cancelled and 17 upon 6 is the final answer. Let me move on to the next one. Now this is the question and I have the result cos inverse cos theta equal to theta if theta belongs to 0 to pi. अब इसमें तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स, ध्यान से देखना, cos, इसको मैं लिखूंगा cos 2 pi माइनस 5 by 6. ये 7 5 by 6 बन रहा है, और ये बनेगा cos इनवर्स cos 5 pi by 6. अब देखें 5 pi by 6 इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, yes it is. So using this property now I can write it as 5 pi by 6. MCQ का देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट में आ रहा है, 5 pi by 6 ये आ रहा है पार्ट बी में. 20th क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूँ इसके साथ. ये साइन ऑफ pi by 3 माइनस साइन इनवर्स minus 1 by 2 is equals what? It is again MCQ.
it is sine of pi by 3 माइनस। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की, तो इसको मैं लिखूंगा अदरवाइज 1/2 जो अगर साइन इनवर्स 1/2 होता तो ये बनता π/6, तो माइनस ये वाला ऐसे ही रहेगा और ये बनेगा माइनस π/6। इसमें थीटा कहाँ बिलोंग करता है, माइनस π/2 टू π/2 के बीच में जो प्रिंसिपल वैल्यू है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये माइनस π/6 आ जाएगा, ये बनेगा साइन ऑफ π/3 और ये प्लस बन जाएगा π/6, π/3 प्लस π/6 और ये बन जाएगा साइन ऑफ 6 एलसीएम आ जाएगा इसमें 2π प्लस, तो ये टोटल बनेगा 3π/6, ये कैंसिल हो जाएगा, sin π/2, sin π/2 is 1, so 1 is the answer. Let me see which part it is. It's D part, so D part is the correct answer here. You can write the D. Let me, this is the last question of this exercise, tan inverse root theta. देखिए इसकी तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको सीधे मालूम है 60 पे होता है, तो π/3 आएगा cot इनवर्स। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से समझना। अगर मैं पुट करता हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं पुट करता हूँ और इसको मान लेता हूँ cot इनवर्स माइनस रूट 3 लेट्स से इक्वल टू थीटा, तो cot थीटा कितना आ गया माइनस रूट। अब है कि यहाँ पे जो थीटा है वो बिलोंग करता है 0 टू पाई, तो मैं इसको cot ऑफ माइनस, कहने का मतलब रूट 3 जो होता है अदरवाइज π/6 पे वैल्यू होगी, मैं इसको माइनस π/6 नहीं लिख सकता। आई विल राइट इट cot ऑफ पाई माइनस π/6। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होगा, ठीक है, और पाई माइनस π/6 कितना बनता है 5π/6, जो किसके बीच में आ जाता है 0 और पाई के बीच में, ठीक है, और ये माइनस रूट 3 ही रहेगा, करेक्ट है। या आप इसको ऐसे कर लें cot थीटा इधर ही रहने दें, इसको इस गणित से भी लिख सकता हूँ मैं cot थीटा इक्वल टू cot ऑफ पाई माइनस π/6। व्हाई, बिकॉज 5 ये सेकंड में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और 5π/6 लाई करता है 0 टू पाई के बीच में, यहाँ थीटा लाई करना चाहिए 0 टू पाई के बीच में, तो यहाँ पे पाई माइनस π/6 आ जाएगा और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/6, तो ये बनेगा π/3, पाई माइनस π/6 बनता है 5π/6, तो ये आएगा माइनस 5π/6, एलसीएम 6 आ जाएगा, 2π माइनस 5π आएगा, तो ये बनेगा माइनस 3π/6 which is equal to minus π/2। Let's see कौन सा पार्ट करेक्ट है, minus π/2, second part is the B part, so B is the correct option here, वो minus π/2। So next time we will take up the miscellaneous exercise.